Okay, ठीक है. Namaskaram. Good morning. So we are discussing business model. I believe कि if we understand the business, the majority thing that we do in office or we think doing can be easily understood. The problem is that we don't understand the business, and that's the reason things connected to business. Everything that we do in Gurukul, from the morning till night, and even in our thoughts, we are only talking about business. Gurukul is a business school, and if you don't understand the term business, तो उसके कनेक्टेड जो चीजें आप पढ़ते हो, बिजनेस लॉ, यू डोंट स्टडी लॉ, यू स्टडी बिजनेस लॉ. कंपनी दैट इज नॉट अ लॉ, इट्स नॉट अ क्रिमिनल लॉ, इट्स अ बिजनेस लॉ. एलएलपी एक्ट, ठीक है ना, पीएफपीटी, ईएसआईसी, लेबर लॉ. लेबर कहाँ पे होते हैं? बिजनेस में होते हैं, ठीक है ना. देन वी स्टडी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कहाँ पे अप्लाई होता है? बिजनेस में. पर्सनल में भी हो सकता है, बट नोबडी केयर्स अबाउट पर्सनल इकोनॉमिक्स. पीपल केयर अबाउट ओनली बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके. देन इनकम टैक्स, जीएसटी किसे अप्लाई होता है? Mainly business, right? Salary को भी लगता है, but mainly business. Again, they are connected to business only, ना. मतलब salary भले वो salary कमा रहे, but from where he is earning salary, that source, the source of the source is business only. The ultimate source is business. Why do we take education? Why are we providing education? So that we can understand business, and people who are working with us should become business, right? What is our business is to develop business, right? Whatever client we have, our business is to develop their business. That's our business. That's what consultancy is. It's like we are Krishna in the Mahabharata of business. Every businessman is playing his own Mahabharata. He is having enemies, he is having friends, he is having competition. There are challenges in the business, and what we do as a consultant, we sit there as a charioteer. वहाँ पे वही बैठे रहते हैं, एंड देन व्हाट वी डू डोंट डू एनीथिंग. ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू. अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा महाभारत हो जाएगा. हमारा महाभारत इसी में कि हम वहाँ बैठे रहेंगे, हम उसको गाइड करेंगे कि अभी आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा. कभी कभी आपकी इच्छा के अगेंस्ट जाके लेना पड़ेगा, बट इन द बिजनेस धर्म यू हैव टू डू दिस. आपने सुना है क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस. लव एंड वॉर आपने सुना होगा. बिजनेस एज अमेंडेड हमने लगा. एवरीथिंग इज फेयर. एवरीथिंग इज फेयर मतलब एक अनफेयर चीज भी क्या हो जाती है? फेयर हो जाती है, ठीक है ना. क्योंकि बिजनेस है, व्यापार है. व्यापार करने के टाइम पे व्यापार करो, ठीक है ना. उधर दोस्ती नहीं, उधर रिलेशन नहीं. अपने बिजनेस में भी आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशन वाले लोग हैं, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग टुगेदर, बट डू यू थिंक वी बिहेव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ? नो. ब्रदर्स आर देयर, वी डोंट थिंक वी आर बिहेव लाइक अ ब्रदर. Even my mother is there, but I don't behave like a child. Because we have created a business in an independent zone. कि हमारा business क्या है? So definitely we have to understand many businesses. But beyond everything, I want you people to understand first of all Gurukul as a business. क्योंकि हम गुरुकुल का तो समझ लेते हैं ना, जिसमें हम काम कर रहे हैं. And then all the businesses, all the industries which are connected to us as a client or as a prospective client, जहाँ पे हमको enter करना है. So this series that we are starting today is a business series. It's a business models. We are going to discuss so many things about business world. It doesn't have any standard format. कि इसी फॉर्मेट जैसे जीएसटी में आपको पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, there will be a standard format because it's a coded law. कि इस सेक्शन में ये लिखा है तो मैं वही बोलूंगा जो सेक्शन में लिखा है. बिजनेस इज अ फ्री स्टाइल डिस्कशन. तो आप लोगों के सवाल आने चाहिए. आप लोग उतने अलर्ट होने चाहिए कि हाँ सर मेरे को आपने ये बोला ना, मुझे इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग चाहिए, या आई एम हैविंग डिफरेंट ऑफ ओपिनियन. आपने ऐसा बोला, मुझे लगता है दिस इज नॉट लाइक दिस. तो आप लोगों से मैं इंटरेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ. आप किधर भी मुझे डिस्टर्ब करो. यू कैन कट मी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट एंड वी विल हैव इंटरेक्टिव डिस्कशन. कैन वी हैव इंटरेक्टिव डिस्कशन? So we are discussing business and the business which support other businesses is Elite Gurukul, and that's the reason maximum time I will be giving example of Elite Gurukul. But then it is not restricted only to Elite Gurukul. We can take it to any business level. In fact, I wanted to start this session by saying the same thing that Mahtab sir has said few days back.
whether there is any difference between job and business. So absolutely no, he said. At the beginning, yes. When you start business or when you start job, absolutely there is a difference. In first 5 years, first 7 years, there will be different. Job में less risk होता है. You get paid. You don't have to put lot of efforts. Monday to Friday का job हो सकता है. That is job. But once you are involved in the job, like you can take example of Vijay, you can take example of Shaili, you can take example of Aarti. They are doing job. But they have never considered themselves as an employee of Gurukul. They always consider they belong to Gurukul, Gurukul belongs to them. So I don't think so business looks any different. आज अगर वो खुद का बिजनेस करते तो शायद वही करते जो आज कर रहे हैं, या शायद उससे कम करते, मुझे तो ऐसा लगता है. गुरु को लेकर के थोड़ा एक ताकत से ज्यादा करना पड़ता है, कैपेसिटी से ज्यादा करना पड़ता है. आपका अगर बाइक एक्सीडेंट होता तो आप क्या करते? 2-3 दिन तो छुट्टी पे लेते. बट Shaili has continued working. तो that's what is business. तो आप एक बार 2-3 साल जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, when you consider this is mine, the way I worked in Number Tree, I never consider Number Tree is my boss company and I'm an employee of Number Tree. तो yes, as a mentality there can be a difference, but so far as the execution is concerned, अगर आप देखोगे तो ultimately आप business का ही काम करते हो. आप जॉब भी करो तो आप ऐसे करो कि आप business ही कर रहे हो, क्योंकि ये आपका नहीं तो किसी और का तो business है. और वो बिजनेस अगर ग्रो नहीं होगा जिसमें आप जॉब कर रहे हो तो आप तो ग्रो हो ही नहीं सकते. बिजनेस ग्रोथ फर्स्ट एंड देन यू ग्रो. इट्स नॉट वाइस वर्सा दैट यू विल ग्रो एंड देन बिजनेस विल ग्रो. एक्चुअली इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. बिजनेस ग्रोथ यू ग्रो, बिजनेस ग्रोथ यू ग्रो, बट फर्स्ट बिजनेस एंड देन यू. तो हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस को. अनदर assumption I have to take here is you people are matured enough to listen whatever I am going to say. अगर मैं ये assumption करूंगा कि मैं कितना भी बातें करूं आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आने वाली, तो ये बातें करके क्या ही मतलब है. तो many of you have not even touched 1% of the business. मतलब आपके फैमिली में दूर दूर तक कोई बिजनेस वाला नहीं है, ऐसा आपको लगता है. तो लेट मी क्लेरिफाई दैट आल्सो. एक घर चलाना भी किसी बिजनेस से कम नहीं होता. You bring resources, you allocate resources, you utilize your resources in the best possible manner, you try to reduce waste, you try to reduce wastage, you try to save time. घर चलाना भी अपने आप में क्या है? बिजनेस है. आप लोगों ने मंदिर देखे हैं, बचपन से देखे हैं. आपको क्या लगता है मंदिर चलाना बिजनेस है कि नहीं है? Is it a business? फंडामेंटली देखो ना क्या है वहां पे. They sell faith. Their product is faith, and they sell in a so beautiful way. There is no price list, but everybody puts money. जैसे बस में भी कंडक्टर रखा जाता है टिकट कलेक्ट करने के लिए. अगर कंडक्टर नहीं होगा तो शायद लोग टिकट नहीं लेंगे. लेकिन वो मंदिर देखो ना कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है. वहां पे कलेक्टर नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो भी कुछ रख के आता है. जिसके पास होते हो तो रख ही लेता है, लेकिन तुम जैसे गरीब भी कुछ ना कुछ रख कर आते हो, तो भगवान को भी दया आती रहेगी. अरे रहने दे, तू रहने दे भाई, लेकिन आप रख कर आते हो क्योंकि आपका क्या है उसमें? फेथ है. रनिंग अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज एन बिजनेस. इट्स अ बिजनेस, एंड इट्स अ वेरी डेडिकेटेड बिजनेस बिकॉज दे सेल फेथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू डिफाइन. यू कैन नॉट डिफाइन फेथ. फेथ क्या होता है? बॉक्स में दिखता है, ऐसा 1/4 किलो फेथ देते, आधा किलो फेथ देते. जस्ट फेथ. इट कैन बी एनी रिलीजियस प्लेस. It can be church, it can be mosque, it can be gurudwara, or it can be any temple. What do you think about education? Has it become a business? एक जमाने में नहीं था, अभी एजुकेशन. तो आपने एजुकेशन लिया है एज्यूम. आप लोग तो आपको पता चलना चाहिए ना एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है. विद फी, विदाउट फी. आप बोलोगे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था तो विदाउट फी. तो तेरा फी टैक्स पेयर ने भरा था. तो पहला कभी भी जिंदगी में टैक्स पेयर मिलेगा ना उसका पेड़ छू लेने का, कि तेरे वजह से मेरे घर पे पानी आता है, तेरे वजह से मेरे घर के सामने से रास्ता जाता है, तेरे वजह से मुझे मेडिकल हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट मिलता है, तेरे वजह से मेरे घर पे राशन आता है, तेरे वजह से मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है एट सब्सिडाइज कॉस्ट, एंड तेरे वजह से मुझे गवर्नमेंट स्कूल में education mila. Because if you are not paying, that means somebody in the country is paying, and that person, that somebody is not a government, because government is taking money from the
टैक्स पेयर जो दिन रात एक करके वो पैसा कमाता है और वो पैसे में से टैक्स भरता है, एंड देन हमारा पूरा देश चलता है। 40 लाख करोड़ हम स्पेंड करते हैं आउट ऑफ मनी जनरेटेड इन इंडिया, एंड 20 लाख करोड़ लास्ट ईयर हमने बाहर से बोरोइंग किया हुआ है। तो हमारा देश भी लोन पे ही चल रहा है। इंडिपेंडेंस से अब तक 60 लाख करोड़ का बजट है। कभी कागज पे लिखने का देखो 60 लाख करोड़ कितना होता है, ठीक है। और अभी निर्मला सीतारमण जी जो नया बजट लाएंगी, बजट देखो, आपको बजट में का 5% भी नहीं समझेगा। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आपको अपने देश का बजट नहीं सर मैं तो साइंस वाला हूं, रहता तो इसी देश में है ना। बजट में होता है क्या, जिस पैसा कहां से आता है और जिस पैसा स्पेंड कहां पे करता है। With this I wanted to ask, running the government is it a business? देश चलाना भी एक बिजनेस है क्या? बिजनेस ही है ना। बिना पैसे के देश चलता है, बिना पैसे राज्य चलता है, बिना पैसे आपकी ग्राम पंचायत भी चलेगी क्या? मतलब घर हो, गांव हो, मंदिर हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल भी बिजनेस बन चुका है अभी। They are not working in the good faith of the patient बच जाए, they are working in the good faith of the hospital बच जाए। पेशेंट कम होते तो लोग वेट करते, भगवान से प्रे करते। सोचो ना, डॉक्टर लोग जाके भगवान के पास क्या मांगे करेंगे, नया बीमारी आने दो, पेशेंट कम हो रहा, बारिश जल्दी आने दो, लोगों को हेल्दी हैबिट नहीं लगने दो। ओ हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया, वाह बोनस। आपको क्या लगता है जस्टिस समझता है? न्याय इज इट बिजनेस? आपके साथ इनजस्टिस हुआ, किसी लड़की के साथ रेप हुआ, किसी के घर में मर्डर हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी किसी ने छीनी है, अब उनको क्या मिलना चाहिए? जस्टिस, उनके हक का मिलना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है वो लेना इतना आसान है कि वो भी एक बिजनेस है? पूरा जुडिशियल सिस्टम क्या बिजनेस बन चुका है। और हम ऐसे अच्छा बिजनेस करते हैं, एडवोकेट्स केस लेने से पहले पैसा लेते हैं और बाद में केस के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस। और कितने एग्जांपल दो आप लोगों को, फार्मिंग की बात करते हैं क्योंकि हमारे मेजॉरिटी बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। आपको क्या लगता है फार्मिंग करना बिजनेस है कि नहीं? इज इट अ बिजनेस? क्या करता है फार्मर? जमीन होती है उसके पास, तो मे बी एंसेस्ट्रल जमीन होगी, खरीदी नहीं होगी, ऐसे ही उगता है, ऐसे जाके फेंकने का किधर कुछ भी। तो क्या करता है? रिसोर्सेस, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आता है उसको, एमबीए स्कूल में जाके करता है वो, हाउ टू मैनेज टाइम एमबीए स्कूल में सीखता है। हाँ, ग्रुप ज्वाइन करता है सुबह जल्दी उठने का करके। क्या करता है उसको खुद को पता है ना, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे प्लांट्स को कितनी बार पानी लगाना है, कभी फर्टिलाइजर देना है, कभी पेस्टिसाइड्स लगाने हैं। कोई अगर डाली में कीड़ा लग गया तो पेड़ बचाने के लिए डाली कट करनी है, ये उसको पता चलता है। और हार्वेस्ट होने के बाद मतलब वो जब कल्टीवेट होता है तो उसको राइट टाइम पे उसको मार्केट तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर उसमें भी 2-3 दिन का अगर डिले हो जाता है तो आपको पता है कंप्लीट लॉस। नेचुरल कैलामिटीज है, एनिमल अटैक है, इन सबसे अपनी फार्म को प्रोटेक्ट करता है। और अगर वो लॉस होता भी है तो ही हैज अ कंटीजेंसी प्लान कि अगर ऐसा कुछ अनहोनी होता है तो कंटीजेंसी में क्या करेंगे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म क्रॉप होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रॉप मतलब शुगर के लॉन्ग टर्म क्रॉप 12 to 14 मंथ लगता है उसको, उसमें से पैसे, इट्स अ कैश क्रॉप, लेकिन उसमें से पैसे आने के 12 से 14 महीने लगते हैं। तो रोज घर कैसे चलाए? तो इसलिए वो क्या करता है, फिर डेयरी में उतरता है। डेयरी मतलब 2-3 भैंस रख देता है, दूध बेचता है, थोड़े वेजिटेबल सेल करता है। उससे क्या होता है उसके घर पे 15-15 दिन में, महीने भर में कैश फ्लो आता है। बहुत गरीब होगा फार्मर तो क्या करता है, लेबर से करता है। लेबर मतलब अपना टाइम बेचता है किसी और फार्मर के लिए। लेकिन अपने पास जमीन नहीं होगी तो जमीन लीज पे देता है, अपने पास ट्रैक्टर नहीं होगा तो ट्रैक्टर लीज पे देता है, अपने पास ट्रैक्टर है तो उसको लीज पे देता है।
मतलब जितने पॉसिबल सोर्सेस होते हैं वहां से वो पैसे कमाने का ट्राई करता है। Who said agriculture is not a business? Agriculture is a business. Amazing business. In fact, we wanted to become agriculture. प्रॉब्लम ये है कि वो रॉ मटेरियल लेवल पे ही रुक जाए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। अगर वो थोड़ा प्रोसेस करके या थोड़ा वेयरहाउसिंग करके राइट टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है तब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च ना करे, वेट फॉर द राइट मार्केट। जब प्राइस ऊपर आता है, टमाटर का आज प्राइस अगर 5 रुपए किलो है होलसेल मार्केट में, तो आज नहीं लाना है, वेट करना है कि 25 रुपए किलो का हो जाए, या 5 रुपए किलो एक लॉट निकल जाएगा, दूसरा लॉट 10 रुपए किलो जब आएगा तब थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। सारा लॉट एक टाइम पे नहीं सेल होना चाहिए। गिरी मिर्ची अगर मार्केट में सस्ती जा रही है तो मिर्ची सुखा के कैसे बेच सकता है, और मिर्ची नहीं बेचनी तो पाउडर बनाना कैसे बेच सकता है, पाउडर सैशे डाल के कैसे बेच सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर वही करते हैं। तो हाउ कैन फार्मर बिकम अ प्रोड्यूसर, उसके लिए हम काम करते हैं एलिट फार्म्स में या भारत में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इट्स अ बिजनेस। अभी इन्होंने गूगल वगैरह से कॉपी करके बिजनेस का डेफिनेशन लिखा है, तो लेट्स रीड देयर डेफिनेशन ऐसो, नहीं तो फिर वो हमारी बिजनेस टीम को बुरा लगेगा कि हमने लिखा कुछ और है, ये बोलता कुछ और है। तो उन्होंने लिखा है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। बोलते हैं बिजनेस रेफर्स टू एन एक्टिविटी, एक कोई एक्टिविटी है ना, मतलब ये इनएक्टिविटी नहीं है। हाँ, आंखें बंद करके बैठो ऐसे, बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस क्या है, मतलब करना पड़ेगा आपको कुछ तो ना, तभी तो वो बिजनेस है। क्या है एक्टिविटी सर, क्या करना होता है, प्रोड्यूसिंग, बाइंग, सेलिंग गुड्स या सर्विस। दो इंडस्ट्री होती है। अब जीएसटी में काम करके आपको इतना तो पता ही चल गया है कि एक गुड्स इंडस्ट्री होती है और एक सर्विस इंडस्ट्री होती है विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बिजनेस बोला तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जैसे टेम्पल गुरुद्वारा मैंने बोला, वो भी बिजनेस ही बन चुका है, लेकिन उनका एटलीस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेवा करना है, और सेवा करते करते अगर कुछ प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या ही बुरा है। तो उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है, ऐसा बोलते तो है कम से कम। It involves various commercial, financial and industrial activities conducted by individual, organization, companies to generate revenue and create value for customers and stakeholders. तो ultimately business क्या generate करता है, खाली प्रॉफिट नहीं, बिजनेस क्या जनरेट करता है, वैल्यू। वैल्यू जनरेट करना मतलब आपको शेयर समझता है, कंपनी का शेयर, इतना थोड़ा जनरल नॉलेज। तो कंपनी का शेयर, आपने किसी कंपनी में शेयर लेके रखा है, आपका शेयर का वैल्यू हर साल कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। और बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा क्या, नहीं। तो वैल्यू जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रॉफिट से लिंक होता है, बट इट्स नॉट ओनली प्रॉफिट। और प्रॉफिट किससे किससे लिंक होता है पता है आपको, प्रॉफिट आपकी कस्टमर लॉयल्टी से लिंक होता है। एप्पल के कस्टमर लॉयल है, एप्पल के कस्टमर्स को कितना भी एक्सप्लेन करो कि एप्पल का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, वो क्या करेंगे, अग्री करेंगे, बोलेंगे हाँ नहीं लेना चाहिए, और फिर जाके क्या लेंगे, एप्पल ही लेंगे। कस्टमर लॉयल्टी है उनके अंदर, यार कस्टमर। हमारे पास दुनिया भर के सर्च इंजन अभी आ चुके हैं, लेकिन हम पहला ओपन क्या करते हैं, हमेशा गूगल ही करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी। आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो, मैक्सिमम लोग कोलगेट, ठीक है ना। कभी कभी आप जाके बोलते हो पेप्सोडेंट का कोलगेट, क्योंकि आपको लगता है कोलगेट मतलब टूथपेस्ट का, आपको ऐसा लगता है। आप फोटो कॉपी नहीं बोलते, आप जेरोक्स बोलते हो, इसका जेरोक्स। तो जेरोक्स वो मशीन बनाने वाली कंपनी है जिसमें फोटो कॉपी निकलता है, वो मशीन का नाम है, वो मशीन बनाने वाली कंपनी का नाम है, ठीक है ना। जेरोक्स चाहिए आपको, कंपनी चाहिए। तो दिस कंपनीज हैव बिकम ब्रांड, ठीक है ना। एंड देन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यू हैव बिकम कमिटेड टू इट। अब उसी कंपनी का नमक लेंगे तो कौन सी कंपनी का, कॉन्शियस टाटा का ही लेना। These are the businesses that we are going to discuss. It is open-ended discussion, and every business try to create value. Business that has created substantial value has grown exponentially. उसकी ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। किसी किसी देश की इतनी वैल्यू नहीं है जितना एक एक बिजनेस वैल्यू जनरेट कर रहा है ओनली फॉर अवर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज,
ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर, जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक स्टेक है, कुछ इंटरेस्ट है, एंड इवन सोसाइटी एट अ लार्ज इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ बिजनेस। होता है कि नहीं सोसाइटी को भी बेनिफिट? अब बोलोगे सोसाइटी को बिजनेस का क्या बेनिफिट? अब गुरुकुल यहाँ पे गढ़ीगलत में है, हमारा सोसाइटी को, हमारे होने से सोसाइटी को, सोसाइटी मतलब आजू बाजू वाले लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्या? डायरेक्ट बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, हमारे क्लाइंट लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, बट सोसाइटी एट अ लार्ज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्या? सोचो जरा कैसे मिलता है। अभी हमारे पास क्लासरूम फैसिलिटी है, तो कल हमने रोटरी का एक हियरिंग एड का प्रोग्राम यहाँ पे लिया, सोसाइटी पैसे लिए उनसे हमने नहीं, तो सोसाइटी के लिए हमने कोई वैल्यू क्रिएट की ना, राइट? हमारे कॉस्ट पे हमने की, हमारे कॉस्ट पे हमने क्यों की? बिकॉज वी आर द बिजनेस, हमारे कॉस्ट पे हमें करना चाहिए ऐसा कोई प्रोग्राम। दूसरा, आप सारे अच्छे सिटीजन हो कि बुरे सिटीजन हो? आप सब अच्छे सिटीजन हो। कब से? चलो लेट अस अस्यूम, मान लेते हैं कि आप अच्छे सिटीजन हो। आपके अच्छे होने से सोसाइटी को भला होता है। आप जो बुरा नहीं कर रहे हो ना, उससे ही सोसाइटी का भला होता है। मतलब आप बुरे सिटीजन भी हो सकते थे और आप समाज में कुछ बुरा ही कर सकते थे, लेकिन आप अभी क्योंकि गुरुकुल में हो और गुरुकुल आपको अच्छा सिटीजन बनाने का ट्रेनिंग दे रहा है, एंड आई अज्यूम कि आप तक वो ट्रेनिंग पहुंच रही है और आप अच्छे से बिहेव करते हो। आप किसी को भी बोलते हो तो नमस्कारम करके बोलते हो, आप किसी का इंसल्ट नहीं करते, चोरी मारी नहीं करते। आप जहां जाते हो वहां वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हो, जहां रहते हो वो जगह साफ रखते हो, तो आप अच्छे सिटीजन हो, अच्छे फैमिली मेंबर हो। आपके ऊपर लोग बिलीव रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो ही और शी विल स्टैंड विद अस। आपके फ्रेंड्स आपको देखते हैं कि हाँ यार, ही इज माय इंस्पिरेशन, ये बंदा जो कर रहा है, ये बंदी जो कर रही है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। दे आर ग्रोइंग इन लाइफ, मुझे भी लाइफ में ग्रो होना चाहिए। इसके लैंग्वेज में चेंज आ रहा है, इसके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। अगर हम 50 लोग बैठ के अगर कुछ अच्छा चीज सोचेंगे तो अच्छी चीज क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी भी हमारे बिजनेस का स्टेक होल्डर होता है। सेकेंडली कनेक्टेड पॉइंट जो यहां पे है, सोसाइटी या देश हमसे अलग है कि वी आर पार्ट ऑफ इट? वी आर पार्ट ऑफ इट ना। कैसे? तो बिजनेस कभी भी आप समझते हो ना, तो बिजनेस ना 4 फैक्टर्स के ऊपर चलता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ बिजनेस। मेनली 4 चीजें के बिना बिजनेस चालू नहीं होता। तो पहला फैक्टर है लैंड। बिना लैंड के कोई बिजनेस नहीं। अब लैंड खुद की भी हो सकती है या लीज होल्ड भी हो सकती है। अभी हमारे पास खुद की बिल्डिंग नहीं थी तो व्हाट वी हैव टेकन ऑन लीज। लेकिन अगर लीज वाला भी नहीं होगा, ओन भी नहीं होगा, तो बिजनेस कहां करोगे, राइट? तो लैंड मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। ऑब्वियसली खाली लैंड का क्या करेंगे, खुले में तो नहीं लैपटॉप लेके बैठ सकते ना। तो लैंड इंक्लूड्स लैंड एंड मतलब फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी हैव। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब उसके अंदर आता है। ओके। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। कि हमारे पास लेबर मतलब लोग आने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए जो काम करे, और अच्छे से काम करे, एफिशिएंटली काम करे, अच्छे से ट्रेनिंग ले, और जितनी ज्यादा ट्रेनिंग ले उतना अच्छा काम करे। तो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, कैपिटल। बिना कैपिटल के कुछ होता है क्या? बिना पैसे की दुनिया में कुछ भी मिलता है क्या? आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आप माँ बाप को जज करोगे, कैसे गरीब माँ बाप है मेरे। अंबानी को देखो, आप अपने माँ बाप को कोसोगे कि आप अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुए। फिर आपके पापा बताएंगे हम अमीर हुआ करते थे, हमारे दादाजी के दादाजी बहुत अमीर हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी। तो तुम पूछो फिर अभी क्यों नहीं है? तो दादाजी शायद आपके पापा बोलेंगे कि गुड टाइम क्रिएट्स वीक पीपल एंड वीक पीपल क्रिएट्स बैड टाइम। वीक पीपल कैन नेवर क्रिएट गुड टाइम। इट्स अ बैड टाइम विच क्रिएट्स गुड पीपल। आप जब गलत टाइम पे होते हो, जब लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग पीपल बनते हैं ना।
How do you create strong people? Not through good time, it's only through bad time. And once the time is good, सब कुछ है घर में, सब कुछ है, सब कुछ, तो मेहनत क्यों करोगे? मेहनत करने का कोई रीजन है क्या? अरे सब कुछ है, 100 करोड़ है घर में, गोली में बांध के रखे, मेहनत करोगे? क्या करना है मेहनत करके? मेहनत करना पड़ेगा वो खर्चा करने के लिए, इतने खर्चे भी तो करने हैं। तो व्हाट यू थिंक, विल यू क्रिएट अ गुड जनरेशन? जिस जनरेशन के बाद इतना वेल्थ होगा, विल दैट बी अ गुड जनरेशन? एक्सेप्शनली कोई तो निकलता है, वो छोड़ दो, सारे सिद्धार्थ गौतम बुद्धा नहीं बनते, एक आध कोई तो होता है, प्रिंस होता है, राजा होता है, वो सब कुछ गिव अप करता है और गौतम बुद्ध बनता है, ठीक है ना? वो कभी तो होता है, कोई तो एक महात्मा गांधी बनता है, जो बैरिस्टर, पता है महात्मा गांधी ही वाज अ बैरिस्टर। बैरिस्टर मतलब ही इज अ ट्रेन्ड एडवोकेट इन साउथ अफ्रीका एंड लंदन ऑल्सो, ठीक है ना? तो फॉरेन में जाके उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंट ही हैड द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिफिकेशन। वो सब कुछ छोड़ के धोती पे घूमना, वो ट्रांसफॉर्मेशन सब में नहीं आता, किसी एक में आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बैड पीपल क्रिएट स्ट्रॉन्ग, बैड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट्स good time creates weak people brings bad time. This cycle will go on. तो आप लोगों को खुश रहना चाहिए that you are born in the bad conditions. Now the only choice you have is to become strong people, and then we will bring good time. And then we will tell our next generation, this wealth doesn't belong to you, तेरा है ही नहीं, बताते रहने का उसको, कभी देना होगा तो दे देने का, लेकिन उसको बताते रहने का, ताकि हम, we don't want the good time should create weak person ना. Even if you are in good time, we can be consciously and we can create a good people. हो सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. By default जो साइकिल है, मैंने बता दिया, साइकिल can be broken. Even weak time can create bad people. ऐसा नहीं कि हर बार bad time can create strong people. Sometimes bad time can also create weak person, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है, अपना कुछ है ही नहीं, अपन तो रास्ते पे भीख मांग के खाएगा रोज. तो the worst time is creating weakest people. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि वो रास्ते पे बैठ के बिजनेस आइडिया बनाया है, मैं कागज जमा करेगा, स्क्रैप जमा करेगा, स्क्रैप बेचेगा, उसमें से पैसा आएगा, फिर मुर्गी खरीदेगा, फिर वो मुर्गी अंडा देगा, फिर और मुर्गी बनाएगा, फिर और अंडे आएंगे, फिर ब्रेड बचेगा. पता है ना, ऐसा कुछ एक मूवी का डायलॉग था. बिजनेस करने वाला कहीं से भी स्टार्ट कर सकता था, 100 रुपीज में भी बिजनेस स्टार्ट होता है. उस सेल्स की बिजनेस लाखों में स्टार्ट होता है, और वो पहले 100 रुपीज भी लाने का कोई ना कोई रास्ता होता है, अगर आपकी इच्छा होगी तो. द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कैपिटल. कैपिटल दो तरीके से बिजनेस में आता है, आइदर ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल, जो अपने घर से हम लेकर आते हैं. एंड लोन कैपिटल कहां से आता है? बैंक से आता है, ठीक है ना? बैंक आपको लोन देता है. एंड द लास्ट वन, इनफैक्ट उसको लास्ट में क्यों रखा है पता नहीं, उसको पहले रखना चाहिए था. एंटरप्रेन्योर, ओनर, फाउंडर, लीडर, गाड़ी का इंजन, ट्रेन के डब्बे का पहला डब्बा, वो कौन होता है? ओनर होता है. बिना ओनर की ये सारी तीन चीजें एक जगह पे नहीं आती. Now let's talk about why society is important in this. लैंड कहां से आती है बताओ? लैंड कहां पे होती है? सोसाइटी के पास होती है, किसी सोसाइटी के बंदे आपको देते हैं. लेबर कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं. कैपिटल कहां से आता है? आप पैसे बैंक में जमा करते हो, बैंक बिजनेसमैन को लोन देता है, तो पैसा भी कहां से आता है? सोसाइटी से आता है. और ओनर खुद एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है. सारे इनपुट्स हम सोसाइटी से लेते हैं, सारे इनपुट्स बिजनेस के. फिर बिजनेस उसको कुछ तो प्रोसेस करता है, और जो आउटपुट बनता है, प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस, वो किससे सर्व किया जाता है? सोसाइटी को ही दिया जाता है. सोसाइटी नहीं होगी तो सर्व किसको करोगे आप? तो आप सोसाइटी को ही देते हो. और इनपुट सोसाइटी से लेके पूरा प्रोसेस करके आउटपुट सोसाइटी को देके बिजनेस बीच में
बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, विद एन एजेंडा बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, फोकस रख के। तो आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत तो सोसाइटी के लिए करना चाहिए? थोड़ा तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ थैंक यू, थोड़ा तो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम हरामखोर लोग, तुम सेल्फिश लोग, तुम नहीं करोगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 इंसर्ट किया और बोला कि CSR मैंडेटरी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है। तो आपने अपने गांव में देखा होगा, तो स्ट्रीट लाइट लगी है और स्ट्रीट लाइट पे लिखा है ONGC, CSR फंड। ICICI बैंक के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कैंप, फंडेड आउट ऑफ CSR फंड ऑफ ICICI बैंक। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट रन करते हैं मुंबई में, which is a cancer hospital, one of the best cancer hospital that we can have. In fact, it is the first, अभी मैं जब गया था ईशा योगा सेंटर में, मुझे पता चला it was the first cancer hospital in India. भारत में कैंसर हॉस्पिटल था ही नहीं. It was established by Tata. Business. अब मुझे बताओ, किसी आपके फैमिली में किसी को कैंसर होगा, उसको वहां पे जाके ट्रीटमेंट मिलेगी, शुड यू बी ग्रेटफुल टू टाटा? टाटा नहीं होते तो वो बिजनेस नहीं होता, वो बिजनेस नहीं होता तो वो प्रॉफिट नहीं बनता, वो प्रॉफिट नहीं बनता तो वो प्रॉफिट में से वो हॉस्पिटल नहीं बनता, जिसमें से क्या होती है? चैरिटी। जब कोविड आया तो आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया कोविड के लिए? ताली बजाई, दिए लगाए, पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया कोविड को निकालने के लिए? नहीं किया। टाटा ने 1500 करोड़ की, 1500 करोड़। तो आपको जो वैक्सीन लगा हुआ है, तो अगेन यू शुड बी थैंकफुल टू होम? गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होता तो डोनेशन लेके काम कौन करेगा? तो एक्शन टेकर गवर्नमेंट ही। लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी एक्शन लेने के लिए क्या लगता है, और वो पैसा कौन देता है? बिजनेसमैन। तो इसके आगे कभी भी किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर आप नेगेटिव रिमार्क करोगे क्या? किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर। एक तो हमारी औकात नहीं है, और आपकी औकात अगर बन भी जाती है तो किसी भी बिजनेसमैन को आप कभी भी जज नहीं करोगे। अगर आपको बिजनेस उससे अच्छा समझता है, why don't you start business and then we will sit together and we'll judge you कि आप बिजनेस कैसा कर रहे हो। तो CSR, yes, it is mandatory बिजनेस की। वो एक मुझे बात बतानी थी कि वैल्यू एडिशन मतलब इट्स नॉट ओनली वी क्रिएट वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जिससे खाली शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसे मिलते हैं, लेबर को टाइम पे पेमेंट मिलता है, लैंडलॉर्ड को टाइम पे रेंट मिलता है, बैंक से अगर लोन लिया होगा तो बैंक को टाइम पे इंटरेस्ट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी ली होगी तो उसको टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस देते हैं। बिजनेस क्रिएट्स बिजनेस, आपको समझता है? एक जब बिजनेस बनता है तो इट क्रिएट्स 10 मोर बिजनेसेस। आप अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ग्रो हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ग्रो होता है या आपका बिजनेस ग्रो होता है तो आपको रॉ मटेरियल लगता है, तो ऑटोमेटिकली फार्मर का बिजनेस ग्रो होता है। ऐसे 10-12 बिजनेस जब ग्रो होते हैं तो सीए का धंधा ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, क्योंकि उन बिजनेसेस का अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन कौन हैंडल करेगा? तो सीए हैंडल करेगा। सीए का धंधा ग्रो होता है तो सीए आप जैसे 50 लोगों को सैलरी देता है, फिर आप 50 लोग जाके कपड़े खरीदते हो तो उनका बिजनेस ग्रो होता है। आप जूता खरीदते हो तो उसका बिजनेस ग्रो होता है, आप मोबाइल खरीदते हो उसका बिजनेस ग्रो होता है, आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो, टेलीकॉम कंपनी ग्रो होती है। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हो, सेविंग डिपॉजिट रखते हो, पता नहीं रखते हो कि नहीं, उतना बचता है कि नहीं। आपके पास तो पिगी बैंक भी नहीं होना चाहिए, उतना भी नहीं बचना चाहिए आपका 2-4 रुपया भी हर महीने का, लेकिन अगर उतना बचता होगा तो उतना तो रखो। बैंक में अगर आपने पैसा रखा तो बैंक का बिजनेस ग्रो होता है। आपने अगर अपने आप के लिए इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस क्रिएट्स बिजनेस। किसी को तो शुरू करना पड़ता है एक लेवल पे आके, फ्रंट लाइन पे आके। दैट्स गुरुकुल। बिजनेस एक सर्कल है,
कंटिन्यूस सर्कल है, लेकिन पहला पता ना आपको, पूरा सर्कल चालू करने के लिए पहला टिम्ब, एक बिंदु रखना पड़ता है। दैट्स गुरुकुल। एक हम लोगों ने अभी यहाँ पे वो डॉट रखा हुआ है। नाउ लेट अस क्रिएट साइकिल ऑफ बिजनेसेस अराउंड अस एंड लेट्स क्रिएट वैल्यू फॉर एवरी बिजनेस। जब मैंने बिजनेस में आने का डिसीजन लिया था या डिसीजन ले रहा था, आई वाज सो कंफ्यूज कि मैं बिजनेस कौन सा करूं, क्या करूं। मुझे बिजनेस करना था, इतना क्लियर था। तो ऑब्वियसली किसके पास गया रहूंगा मैं? महताब सर के पास गया था। तो महताब सर ने मुझे बिजनेस का नाम नहीं बताया कि आप ये बिजनेस करो। उन्होंने खाली इतना बोला, आप जो भी करो मेक श्योर कि आपके होने से किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। योर बिजनेस शुड बी वैल्यू एडिशन बिजनेस। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? फिर मैंने अपने एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड को मेरा कुंडली दिखाया। उन्होंने बोला आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको लिक्विड का बिजनेस करना है। यू शुड डू समथिंग विच इज लिक्विड। तो पहला लिक्विड का बिजनेस कौन सा माइंड में आता है? जिसके कस्टमर बहुत डेडिकेटेड होते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए, खुशी में भी पीते हैं और गम में और पीते हैं, और कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ होने के लिए पीते हैं। तो बहुत ही डेडिकेटेड। कभी बार्गेनिंग करते हुए देखा है आपने? आप सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते रहोगे, कपड़े वाले से बार्गेनिंग करते रहोगे, आप हर जगह पे जाके बार्गेनिंग। हम तो ऐसी जगह पे भी जाके बार्गेनिंग, सोनार की दुकान में भी हमने बार्गेनिंग किया, लेकिन हम दारू वाले लोगों के साथ कभी बार्गेन नहीं। उन्होंने बोला 222 रुपया तो 222 रुपया देते। हम ये भी नहीं बोलते भैया ऊपर का 2 रुपया छोड़ दो, एग्जैक्ट पैसा देके आते। नो बार्गेनिंग। डिमांड सप्लाई का कोई टेंशन नहीं, बहुत लॉयल कस्टमर। तो आई ऑल्सो थॉट कि आई क्रिएट, आई स्टार्ट समथिंग इन लिकर, बियर ऐसा कुछ तो चालू करते, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेरे को पेट्रोल पंप भी करने का था, लेकिन फिर मैंने उसका बजट निकाला तो फिर पता चला कि अपने होगा नहीं। तो देन मैंने सोचा कि क्या दारू बनाना, दारू बेचना, दारू बेचना, वैल्यू एडिशन का प्रॉफिट तो बहुत होगा। आई विल ऐड वैल्यू टू माय शेयर होल्डर्स, highly profitable business, but will I add value to the society and will I be proud in front of Mahtab कि सर देखो 3 लाख लोगों को बेवड़ा बनाया इस साल, 3 लाख लोगों के घरों को बर्बाद किया सक्सेसफुली। महताब सर ने एक बार मुझे बताया था कि राम दारू कभी पियो तो इतनी ही पियो कि आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ रुकना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने वो भी बताया कि आप स्टार्टिंग में दारू पीते हो और बाद में दारू आपको पीती है। स्टार्टिंग में आप बॉटल खत्म करते हो, फिर बाद में बॉटल आपको खत्म करती है। तो आप लोग भी जब भी सोचो कि चलो बाटली बुला रही है तो मत पियो, क्योंकि वो अभी आपको खत्म करने निकली है। आपका वॉर है उसके साथ, या तो वो जीतेगा या तो आप। देखो आप लड़ लो, आपकी फाइट है। तो हमने इसलिए नहीं चालू किया। इसलिए एलीट लीकर या एलीट अल्कोहल या एलीट बियर या एलीट विस्की हमारी नहीं है, इवन दो इट इज हाईली प्रॉफिटेबल। तो अभी हमने सोचा है, अंजेश ने बोला है कि जब हमारे पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे देन वी विल कम इनटू डेयरी व्हिच इज आल्सो अ लिक्विड बिजनेस। वी कैन सेल प्यूरिफाइड वाटर, दैट इज आल्सो अ, मतलब लिक्विड में वो भी याद आना चाहिए था ना, लेकिन वहां तक दिमाग पहुंचता नहीं। दूध पी के कौन नहीं चलाता है। तो लेट्स डू द बिजनेस व्हिच विल क्रिएट वैल्यू। कैन वी क्रिएट बिजनेस लाइक दैट? अपन सब लोग यंग है ना, अपना एडवांटेज क्या है पता है? अपन सब लोग यंग है, एंड वी आर क्रेजी पीपल, वी आर नॉट गुड पीपल, वी आर क्रेजी पीपल। एंड अच्छा लगता है, पागल लोगों का होना इस दुनिया में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट महताब सर का और एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने उनको गुरुकुल का प्रोजेक्ट बताया था 2018 के आसपास में, एंड आरती गया थी, आरती भी शायद थी मेरे साथ। वी वेंट देयर, वी सैट देयर, एंड देन मैंने उनको बताना चालू किया कि सर ऐसा 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 करूंगा। एंड ही इज द पर्सन हु कुड हैव चेंज्ड दिस होल प्रोजेक्ट लाइक दिस। उनके पास जाने से पहले मैंने अंजेश को बताया, दिलीप को बताया, मेरे लाइफ के जितने भी लोग थे उन सबको बताया। सबने बोला कि तू पागल है। मैक्सिमम लोगों ने वही बोला। इनफैक्ट अंजेश आज भी बोलता है
I don't agree to what you say, but just because you are my friend, I don't have choice of not supporting. I'll support. तो जब महताब सर के पास हमने हमारा बिजनेस का प्लान रखा, तो आप लोग भी कभी तो हमारे पास ऐसा बिजनेस का प्लान लेकर आओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसी होती है। तो पूरा मैंने बिजनेस बताया, सर ऐसे करूंगा, लैंड होगी, ये होगा, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, देन स्टाफ क्वार्टर्स, देन कॉलेज फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, देन जो भी लाइफ लिविंग के लिए जितनी भी जिम वगैरह जो भी होता है, मतलब जो कि एक हेल्दी अच्छी लाइफ जीने के लिए चीजें होती है, सारी वहां पे होती है। तो सर ने पूछा भाई पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला वहां पे एक ऑफिस भी रहेगा। बोलते वो पहले बताना कि ऑफिस होगा जहां से काम, मतलब काम भी करोगे। मुझे तो लग रहा है कि सुबह से उठोगे रात तक खाली खेलते कूदते रहोगे। पूल वगैरह अगर कैंपस में होगा तो ऑफिस में कौन जाएगा, लोग पूल में पड़े रहेंगे ना। बोला नहीं सर, काम भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे। तभी मेरा बिजनेस का प्लान उतना क्लियर नहीं था। ऑब्वियसली 2018 में मुझे भी वो सब बोलने नहीं आता था, तो अभी आता है। तो उनको मेरे बिजनेस में कोई वैल्यू नहीं दिखी, मतलब पैसा नहीं लगा, उनको लगा कि ये भूखा मरेगा एक दिन अभी। तो मुझे लगा वो बहुत ही काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, विच वर नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव मतलब कि मुझे ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, क्या या मैंने वो एंगल सोचा है बिजनेस का, जो रिस्क फैक्टर वाला एंगल होता है वो मैंने सोचा है कि नहीं सोचा है, वो मुझे चेक कर रहे थे। और सच में मैंने वो सब नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव सोचते रहता तो ये चालू नहीं होता। तो लास्ट में मुझे लगा कि सर मुझे बोलेंगे ये सब बंद कर नाटक, चुपचाप इधर सीए फर्म चला। 15-16 क्लाइंट उन्होंने दिए थे शुरू के। उन क्लाइंट्स के कंप्लेंट है कि राम टाइम नहीं देता, तो चुपचाप वो कर। एकेडमी चला, जो पढ़ा रहा है अच्छे से पढ़ा। ऐसा मुझे लगा था, मेंटली मैं प्रिपेयर था वो सुनने के लिए। बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं राम, योर बिजनेस आइडिया इज इरैशनल। इरैशनल समझता है, इस अपोजिट ऑफ रैशनल। रैशनल मतलब आप लोग आप बहुत ही रैशनल लोग हो, आप सोचते बहुत हो, करते कम हो। उनको क्या बोला जाता है? रैशनल। आप रिस्क लेते हो क्या? क्योंकि आप क्या हो? रैशनल हो। रैशनल इंसान सब कुछ दांव पे नहीं लगाता, ठीक है ना? आपने अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपना पैसा, अपने विचार सब प्रोटेक्ट करके रखा है कि कभी तो मौका आएगा और मैं यूज करूंगा। आज ब्रेन यूज करूंगा, आज खत्म हो गया तो कल क्या करूंगा? आज बॉडी यूज करूंगा तो कल अगर बॉडी नहीं रहेगी, थक जाएगी, तो कल क्या करूंगा? मेरा शरीर कौन उठाएगा? तो आप लोगों ने सब कुछ बचा बचा के रखा है। आप रैशनल लोग हो, इसलिए आप जॉब करने का भी सोचते हो। रैशनल लोग जॉब करते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें खाली जाके जॉब ही करना है। सब कुछ रेडी है, कंप्यूटर, सीट, चाय, नाश्ता सब रेडी है। खाली जाके उधर रोज अपना शरीर रखना है और उसका अपने को महीने का पगार मिलेगा। प्रोडक्टिव वगैरह, प्रोडक्टिविटी, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाढ़ में गया, अपना तो काम चल जाएगा। रैशनल लोग जॉब करते हैं। मुझे भी लगा कि सर मुझे बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पहला सेंटेंस बोला, योर बिजनेस आइडिया इज कंप्लीटली, नॉट थोड़ा इरैशनल, कंप्लीटली इरैशनल, 100% इरैशनल। एंड तब तक मैं सोचा कि अभी लास्ट सेंटेंस बोलेंगे गिव अप। मैं बोलता ओके। उससे ज्यादा वोकैबुलरी यूज नहीं होती सर के सामने। यस सर, नो सर, ओके सर। नो सर भी बहुत, मतलब नो सर तभी जब उनको नो सुनना है। जैसे अगर उन्होंने पूछे राम अगर सिगरेट पिएगा तो क्या बोलना चाहिए? तो नो ही बोलना है ना। वो ये बोलेंगे राम काम करेगा, तो ये तभी नहीं बोल सकता नो सर, जूता निकाल के मार देगा फिर तो 2 मिनट का पॉज लिया उन्होंने ऐसा बीच में और बोलते हैं, राम यू नो व्हाट, द वर्ल्ड हैज ऑलवेज चेंज्ड, इज ऑलवेज बीन चेंज्ड by people who have taken irrational decision, not by rational decision. Rational people do nothing in this world. They change nothing in this world. Only irrational people can something. Your idea is completely irrational. I don't know how will you survive, but go ahead and do it. और फिर मैंने पीछे नहीं देखा. This is how our business started, and that's the reason somebody should be there in your business who will guide you कि आपकी आइडिया कितनी इरैशनल है, and then somebody should stand with you. I support you even in your irrational, most wild thought कि मैं ऐसा अटेम्प्ट देखेगा कि क्या होता है बिजनेस में, क्योंकि सारे बिजनेसेस आप देख सकते हो तो
कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क समझता है? कैलकुलेटेड मतलब वड़ा पाव वाला मैक्सिमम ऐड करके भजी पाव ऐड करता है, कैलकुलेटेड रिस्क है। वड़ा पाव बिकता है तो भजी पाव भी बिकेगा, समझ रहे? चाय वाला मैक्सिमम ऐड करके क्या ऐड करता है? कॉफी, बिस्किट, कैलकुलेटेड रिस्क है। डायरेक्ट बिरयानी का दुकान डाल देगा तो शायद ना चले। चाय वाला एक जगह पे ही चाय करता है, गल्ला किसके पास रखता है? खुद के पास। एम्प्लॉय को अलाउ होता है क्या उधर के गल्ले में हाथ डालने के लिए? क्यों? एम्प्लॉय शायद चोरी कर सकता है, 10-15 रुपए अपनी जेब में रख सकता है, गले में नहीं रख सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। तो रतन टाटा जी गल्ला लेके बैठे, टाटा ग्रुप का। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में फर्क समझो। वो रैशनल पर्सन है, रैशनल बिजनेस वाला है, इसलिए उसको क्या नहीं लेनी है? तो 100 ब्रांचेस ओपन कर पाएंगे? 100 गल्ले पे एक बंदा कैसे बैठेगा? तो जिसको रिस्क नहीं लेनी होती वो ग्रो नहीं करता। आपको अगर सच में वैल्यू एडिशन वाला बिजनेस लाना होगा, इट हैज टू बी इरेशनल आइडिया, और आपके अंदर एक बिजनेसमैन का जिगरा होना चाहिए जो क्या करता है? रिस्क लेता है। और रिस्क लेने के बाद आपको रिटर्न पता है, दोनों आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है और आने के लिए तो दोनों आ सकता है। तो आपको दोनों के लिए रेडी होना चाहिए ना। महताब सर बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जब भी मैं उनके पास कुछ भी लेकर गया हूं, वो मेरे को कागज पे एक कागज लेते थे, उसको 2 टुकड़े में डिवाइड करते थे और लिखते थे बेस्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, एक्सट्रीम। तो उन्होंने गुरुकुल का वर्स्ट लिखा हुआ है। महताब सर ने गुरुकुल का वर्स्ट लिखा हुआ है कागज पे। कभी उन्होंने लिखा है कि वर्स्ट क्या हो सकता है ना, कि जितनी भी तेरे पास प्रॉपर्टी है सारी जीरो हो सकती है, जितना भी सेविंग्स है सारा जीरो हो सकता है। घर पे प्लास्टिक का डब्बा भी नहीं है बेचने के लिए, कुछ घर ही नहीं है, सब जीरो हो चुका है। आज खाने के लिए पैसे भी नहीं है, समझ में आ रहा है? भूख लगी है और खाने के लिए क्या नहीं है? वर्स्ट तो वही हो सकता है ना, जिंदा रहने के बाद वर्स्ट और हो सकता है, जा सकता है। अब तभी तो सोचना नहीं है ना कि अभी चला गया, अभी क्या सोचोगे? नहीं जाओगे तो सोचना पड़ेगा ना। तो वर्स्ट ये हो सकता है, उन्होंने बोला कि खाने के लिए पैसे नहीं हो सकते, शायद ऐसा वर्स्ट दिन आपके बिजनेस में आ सकता है। वो एक रात जो है ना, आप सो जाना प्लीज, भूखे पेट। शायद भूखे पेट पे आपको कोई एक आइडिया आ जाएगी जो कल से आपको नया उजाला दिखाएगी। एक रात आप पेशेंस रखिए, और अगर कल तक अगर कोई आइडिया नहीं आई और आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, देन यू कम बैक टू मी एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू नाउ। दैट्स आवर इंश्योरेंस। क्या लगता है आपको वो दिन आएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनके यहां पे जाने के पहले अगर ऐसा कभी दिन आया कि हमारे खाने पीने के वादे हो गए हैं, तो मुझे 1 साल का बफर चाहिए फिर से बिजनेस को जीरो से बनाने के लिए। कितना टाइम चाहिए मुझको? मैंने जितना भी आज तक स्टडी किया ना, 1 साल में मैं नया बिजनेस एकदम जीरो से बनाने की ताकत रखता हूं। लेकिन 1 साल पेट खाली नहीं रहना चाहिए ना, भूखा नहीं रह सकता 1 साल। और खाना खाने के लिए मैंने अपने आप को कस्टमाइज किया। मेरे को खाली सिंपल सा दाल भी मिल गया और राइस मिल गया, आई एम डन विद दैट, मतलब मेरे को उतना भी चल जाता है। तो मैंने गुरुकुल की जो फर्स्ट बैच थी उसको बताया था। आई डोंट नो आप लोगों को कभी बताया है कि नहीं बताया, आज बता देता हूं क्योंकि आज बिजनेस का प्लान चल रहा है। और मैंने बोला कि मैं गुरुकुल का बात करूंगा क्योंकि आपको पहले गुरुकुल का बिजनेस समझ में आना चाहिए, तो हम लोग बाकी लोगों के बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। मैंने बोला जिस दिन वो दिन आएगा जो सर ने लिखा था कभी कागज पे कि आज अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन में सर के पास जाने से पहले अपना बिजनेस है करके मैं भीख मांगने जाऊंगा। किधर? आप लोगों के घर पे भी आ सकता हूँ, गांव में आ सकता हूँ। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं गुरुकुल रन कर रहा था, गुरुकुल रन कर रहा हूँ, और हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, अगर खाने के लिए आप कुछ दे सकते हो, खाने के लिए मतलब इमीडिएटली खाने के लिए चपाती वगैरह नहीं, कुछ अगर दाल थोड़ी दाल थोड़ा राइस अगर आप दे सकते हो, कोई आइटम हमको चाहिए, उससे ज्यादा के हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो दे दो। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 3-4 दिन भीख मांग लूंगा तो मुझे 1 साल जितना राइस खाते उतना राइस
जमा करेंगे, एक हफ्ते में हो जाएगा उतना जमा, ठीक है ना। और उतना भाई जब जमा हो जाएगा तो मैं आपको आके बोलूंगा फिर से, अब 1 साल का खाने का जुगाड़ हो चुका है, लेट्स क्रिएट बिजनेस अगेन फ्रॉम जीरो। दैट्स द वर्स्ट। बेस्ट क्या है हमारे अभी एक्टिव डिविजन्स कितने, अभी डिविजन्स एक्टिव टीम्स नहीं, टीम्स कितने टीम से देखो ऊपर कितने टीम बैठी है, कंप्लायंस टीम, कंसल्टेंसी टीम, कंप्लायंस टीम आरओसी वगैरह जो सीएस रिलेटेड काम होता है मेनली वो करते हैं, कंसल्टेंसी डिवीजन सीए रिलेटेड जो काम होता है वो करते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट। नीचे पेरोल डिवीजन चालू हो चुका है व्हिच इज द रिसोर्स डिवीजन, देयर इज एकेडमिक डिवीजन, देयर इज अ बिजनेस डिवीजन, बिजनेस अलग है, एंड देन देयर इज अ टेक डिवीजन। तो कितने होंगे, 6 डिवीजन होंगे। आप सबको पता है आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है, 1 करोड़ इज द टारगेट। कैसा, वो आप लोग बैठ के सोचो और मुझे लिख के दो, अपन अपना बेस्ट और वर्स्ट लिखेंगे, अपने डिवीजन का बेस्ट क्या होगा, अपने डिवीजन का वर्स्ट क्या होगा। राउंड सर को हमने बता दिया कि हाउ टू अर्न 1 करोड़। कंसल्टेंसी का आपके पास बजट हमारा रेडी है, कितने क्लाइंट आते हैं तो कंसल्टेंसी में 1 CR आता है। कंप्लायंस वाले आप लोग बना लो, कंप्लायंस में कितना करेंगे तो 1 CR आएगा। रिसोर्स वाले आप रेडी करो, क्या करेंगे तो 1 CR आएगा। टेक वाले आप लोग डिजाइन करो कि क्या करेंगे तो 1 CR आएगा। और बिजनेस वालों आप डिजाइन करो कि कितना बिजनेस करेंगे तो 1 CR हमारा अलग से आएगा। हम ऐसा क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरे बिजनेस को बिजनेस करना सिखाएंगे, हम कंसल्टेंसी बेचेंगे, हाउ टू डू बिजनेस, और उससे बिजनेस के पैसे कमाना चालू करेंगे। जो हमने तो चालू नहीं किए, क्योंकि पहले अपनी तो समझ ले कि अपना बिजनेस कैसा ग्रो होता है, फिर हम दूसरे लोगों का भी ग्रो करेंगे। तो एवरी टीम शुड हैव टारगेट ऑफ हैविंग, टारगेट तो रखो, फिर देखते हैं इस साल कितना अचीव होता है, फिर अगले साल कितना होता है, और क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो मुझे लाके बताओ, फिर हम उसको रीजन महता आपको बताएंगे, और फिर महता तुमको 2 बातें बोलेगा। अभी तुमको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए ना, मेरे को डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देता, 2 मिनट बोलेगा सर मेरे टीम को डाउट है जरा 2 मिनट कि पैसे क्यों नहीं कमानी चाहिए, जरा उनको बता दो। तो दैट्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू, लेट्स क्रिएट वैल्यू फॉर आवरसेल्फ फर्स्ट। अपने अकाउंट में पैसे रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुकुल का पैसा गुरुकुल में ही रहेगा, गुरुकुल का पैसा गुरुकुल के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुकुल के सारे शेयर होल्डर गुरुकुल के अंदर है, बाहर कोई नहीं, हमारा सोसाइटी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। अभी हमने पब्लिक मनी नहीं रेज किया, 2035 में शायद हम रेज करेंगे, तब हम लोगों को बाहर वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। अभी हम लोग खाली रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों के लिए जो लोग गुरुकुल के अंदर। तो आर वी हैविंग अ वैल्यू बिजनेस, कि हमारे होने से क्या लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो सकती है। हमने हमारी कंप्लायंस डिवीजन ने कंप्लायंस वालों को मतलब सारे कंप्लायंस टाइम पे हैंडल किए, बिजनेस में वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको एटलीस्ट नॉन कंप्लायंस की जो डर होते हैं, पेनल्टीज होते हैं, वो नहीं लगेंगे। कंसल्टेंसी वालों ने अच्छे से कंसल्टेंसी दी, अच्छे से टैक्स का काम किया, टैक्स प्लानिंग अच्छे से किया, बिजनेस अच्छे से क्रिएट किया, तो हम ग्रो हो सकते हैं। पेरोल वालों ने प्रॉपर पेरोल हैंडल किए, लेबर का भी इशू आएंगे तो लेबर इशू विल हैंडल, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिना लेबर के कोई बिजनेस ग्रो होता ही नहीं, बिजनेस हमेशा ग्रो बनाते हैं। तो पेरोल वाले खाली बिना समझे कि पीएम पीटी का काम करेंगे, देयर विल बी डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारे पास अलग अलग एमएनसीज उनके एम्प्लॉय ट्रेन करने यहाँ पे भेजेगी, गुरुकुल में रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। समझ रहे हो, जैसे एक्सिस बैंक अगर 25 एम्प्लॉय हायर करती है तो हमारे पास आएगा कि सब इनको सिखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सीए में कैसे बनाते हैं, सीए में इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम ले सकते हैं। वी शुड बी केपेबल ऑफ, लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक का खुद का ट्रेनिंग सेंटर तो आईसीआईसीआई नहीं दे सकता, लेकिन छोटे मोटे जो बैंक है जिनका खुद का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है वो तो दे ही सकते हैं। सो ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, ह्यूज पॉसिबिलिटीज, we will create values for every business which is connected to us. So that's the point. In a business, entrepreneurs and business owners typically identify opportunities in the market. अब कैसे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखता है जहां पे भी, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए।
तो गुरुकुल ने वही किया। आपको लगता है यहाँ का जो ग्रामीण हमारा एरिया है, कोल्हापुर की जिस बेल्ट में हम है, वहां पे एजुकेशन बेस्ट है? बेस्ट मतलब यहाँ पे हार्वर्ड फेल है अपने सामने। हाँ सच में है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये लोग पास कैसे हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो पढ़ाई करके पास होते हैं, ये लोग ऐसे ही पास हो रहे हैं। ये लोग तो बीकॉम हो गए। मास्टर ऑफ कॉमर्स को सेल्स की एंट्री नहीं आती, बताओ। सेल्स की, हाँ, मैं अमान का मिशन नहीं बता रहा हूं कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया तो जनरल एंट्री बताओ। ये कंपनी ने प्रोडक्ट सेल किया, उसमें जीएसटी है, उसका एंट्री बताओ। वो एंट्री मास्टर्स ऑफ कॉमर्स हमारे यहाँ के लोग कर। मास्टर्स मतलब समझता है तुमको? एक होता है बैचलर, जो 5 साल का कॉमर्स पढ़ता है और फिर 2 साल और पढ़ता है, और क्या बनता है? 7 साल का कॉमर्स पढ़ने के बाद क्या बनता है? मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। और मास्टर ऑफ कॉमर्स को पूछो कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज प्रूडेंस? प्रूडेंस क्या है? कोई बता नहीं पाता कि प्रूडेंस क्या है। यहाँ पे तो सीए फाइनल के भी बच्चे, प्रूडेंस क्या है? आगे का सोचना प्रूडेंस नहीं होता, वो भी प्रूडेंस होता है, बट एग्जैक्टली अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रूडेंस क्या है? सीए में फाइनल कंजर्वेटिज्म क्या है? ये प्रॉब्लम है। अक्रूवल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन क्यों बुक करते हैं? डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, लेकिन बुक क्यों करते हैं? नहीं, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं। वी शुड मैच अवर बेसिक्स है। मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना भी चाहता हूं, क्योंकि पहला आपको पता तो चले कि आपको नहीं आता। और बाकी जो नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट है वो एफर्ट्स ना लगाए कि ये कौन से शब्द बोल रहे हैं, वो आराम कर। अनयूज ब्रेन को अनयूज रहने, कहीं यूज होगा, खत्म हो जाएगा। आज कल क्या करोगे? एंड यू वांटेड टू बी एन अकाउंटेंट, जिसको प्रूडेंस नहीं पता, जिसको कंजर्वेटिज्म नहीं पता, जिसको शेड्यूल 3 नहीं पता, जिसको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में का डिफरेंस नहीं पता, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे बाइफरकेट होता है वो नहीं पता। हमारे यहाँ पे तो कुछ महान ऐसे लोग हैं जिनको डेटर क्रेडिटर में का फर्क नहीं पता है। हमारे पास सेल करते और क्रेडिटर मारते, मतलब वो पैसे गुड्स भी लेकर गया, अब थोड़े दिन के बाद आएगा पैसे भी लेकर गया। और क्रेडिटर में वो नेगेटिव दिखता है, तो टैली गलत होगा, सॉफ्टवेयर गलत होगा, हम सही है। हमारा सेल्स का एंट्री ऐसे ही होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। हमको सही नहीं लगता, इसमें गलत क्या है? या सेल्स बरोबर मारते हैं, लेकिन उसका लेजर का जो क्लासिफिकेशन रखते हैं पार्टी लेजर का, उसको क्या रख देते हैं? करंट लायबिलिटी, क्योंकि रिसीवेबल पेएबल का डिफरेंस नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम है, हमें पता है ये प्रॉब्लम है। जहां प्रॉब्लम है वहां पे क्या होती है? क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपको अलग से ऐसे नहीं दिखाती, मैं अपॉर्चुनिटी, मुझे ग्रैब करो। आपको हमेशा इंडस्ट्री का क्या दिखता है? प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम देखने के बाद कुछ लोग प्रॉब्लम को ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ हाँ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है। हमारे यहाँ पे गधे प्रोड्यूस होते, गधे ही प्रोड्यूस होते रहेंगे, व्हाई टू चेंज? और जिसको गधा नहीं रहना है वो जाए किसी और शहर में। इस शहर में रहोगे तो गधे ही बन के रहना पड़ेगा। इधर का सिस्टम हम नहीं बदलेंगे, नहीं तो तुम्हारे कॉलेजेस के ऊपर, प्रोफेसर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। अगर बच्चा जाके अकाउंट्स के प्रोफेसर को पूछेगा कि आज मैंने प्रूडेंस सुना था, आपको पता है कि सर प्रूडेंस क्या होता है? तो तुम्हारा प्रोफेसर जो रिप्लाई में तुमको बोलेगा, उससे तुम्हें प्रूडेंस आना चाहिए कि ऐसा सवाल प्रोफेसर को नहीं पूछना चाहिए। ठीक है? प्रूडेंस मतलब अक्कल, अक्कल, बिजनेस की अक्कल।
तो अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे इम्प्रूव, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। कंसल्टेंसी में अपॉर्चुनिटीज है, बोलो। तुम्हारे यहाँ पे बिग 4 वगैरह